Hello students, we'll continue with coordinate geometry, okay? And when I was reviewing the last day's class, I saw that I have missed one small part of parabola, okay? So parabola का recap क्या है? Formula y minus b square equals to 4kx minus a is the generic formula, or x minus a whole square equals to 4k y minus b is the generic formula, where a b is the vertex of the parabola, coordinate of the vertex of the parabola, and k is the distance from that vertex to the focus. And when k is negative, then it will be aligned with the negative direction, and when k is positive, it will be aligned with positive direction. And aligned with which axis? If x has maximum power 1, then it will be aligned with x-axis. Okay. Now, last day we have shown one example. Okay, a is equals to ut plus half at square. इसको कैसे ये फॉर्मेट में लाया जा सकते हैं? This one that we have shown. ठीक है. Now I will show how we can show. So this one is something like this. The graph is like this. The parabola graph is like this. If t can be negative, okay, s is t. If t can be negative, then only this part will come into the picture. Otherwise, this graph is only up to this. But if we extend this, then we'll be able to find out what is the vertex and what is the k of this. Okay, that you can easily calculate. Next one is, if ut minus half at square. Ut minus half at square, if it is a negative acceleration. Same thing, like इसको कैलकुलेट करते हैं. a इक्वल्स टू हाफ a t square minus ut divided by 2a. ठीक है. एंड देन इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा. टू ut divided by a, then u by a होल स्क्वायर. तो यहां पे क्या ऐड हो रहा है? u by a होल स्क्वायर. ठीक है. तो दिस वन इज s u by 2a half a t square by t by us square. तो इधर से we can draw the graph, which will be, you can easily calculate the k from here. So half a minus half a is k, sorry, 4k. So k is minus a by 8. So क्या क्या इंफॉर्मेशन
S is having the power 1. So it will be aligned to axis of S. Minus u by 2a and u by a is the coordinate of vertex. So if this one is u by a along axis t, and if this one is u by 2a, then this is the vertex. Okay, and it is k is minus a by 8, so it will be aligned towards the negative axis of S. So it will be like this, and also it will pass through 0 0. We already know that if 0 is t is 0, S is also 0. So graph will be like this. ठीक है, तो S will have two values of t where S is 0. S का दो वैल्यू होगा और t का दो वैल्यू होगा जहां पे S is 0. S will be 0 when t equals to 0 and also when this is equals to 0. Okay. So if this one is u by a, this has to be 2u by a. S equals to 0 when t equals to 0 or 2u by a. And S का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? u by 2a. ठीक है, शायद तुम्हें एटलीस्ट टू सम ऑफ यू तुम्हें मालूम है कि इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड, ऐसे करके थ्रो किया, then it will reach the maximum height of u by 2g. Maximum height, max height is u by 2g. ठीक है, and the maximum time it will achieve that is not u by 2g, I think. Once again, calculation wrong. This is u square by 2a. Okay, it will be maximum height will be u square by 2g. यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ था. u square by 2a, u square by 2a, so u square by 2a will be u square by 2g. Maximum height is u square by 2g and time taken to reach that height is u by a. तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से भी ये आ रहा है. ठीक है, तो इफ यू नो द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, देन ऑल्सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन कैलकुलेट दैट. एंड ऊपर जाएगा u बाई, सॉरी नॉट a, u बाई g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. सो u बाई g टाइम पे ऊपर जाएगा, u बाई g टाइम पे फिर से नीचे आएगा. तो एस कब जीरो है? व्हेन वी आर स्टार्टिंग, तब एस जीरो है. फिर ऊपर जाके नीचे आ गया, u बाई जी ऊपर गया, u बाई जी नीचे आ गया, 2u बाई जी, दैट इज 2u बाई जी. यहाँ पे देखो t का वैल्यू 0 पे और 2u बाई a यहाँ पे g, तो एस 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है. और एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, कि ये पैराबोला नहीं है, लेकिन मानो एक ग्राफ है which is s equals to velocity into t. Displacement, velocity into t. When v is constant, we already know it will be a linear curve. S and t का जो curve होगा, which will be a linear curve when v is constant. But मानो v is not constant. So if v is increasing, okay, v is increasing, then graph कुछ ऐसे टाइप का होगा. Means
v क्या है यहाँ पे? v इज द स्लोप, v is the slope, but slope is not constant, not linear equation. v is changing. We don't know at this moment at what rate v is changing. maybe कुछ इक्वेशन है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह देखने लगेगा। ये पैराबोला नहीं है, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरह होगा। देखो यहां पे दिस इज m और tan थीटा, यहां पे tan थीटा इज लाइक दिस, ठीक है। दिस इज m1, दिस इज m2, और यहां पे tan थीटा इज लाइक दिस। सो दोनों दो पॉइंट यहां पे ले लो, दो पॉइंट यहां पे ले लो, उसके बीच में रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टी, ये m1 है। दो पॉइंट यहां पे ले लो, चेंज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी m3 है। दो पॉइंट यहां पे ले लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी इज m3, m2 यहां पे, m3 यहां पे। So m3 is greater than m2 greater than m1. So when the slope is increasing, ग्राफ कुछ इस तरह है। When slope is decreasing, ये कर्व कुछ इस तरह होगा, either like this or like this, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो यहां पे देखो दो पॉइंट ऐसे ले लिया, तो यहां पे m1 इज दिस, यहां पे दो पॉइंट ले लिया, m2 विल बी लाइक दिस, यहां पे दो पॉइंट, m3 will be like this. So clearly here m3 less than m2 less than m1, ठीक है। Similarly, if you take here, so if between these 2 points, this is the slope, because we'll have to calculate it against the positive direction of x. If we calculate here, this is the value. If we calculate here, this is the value. Okay, so here also you see it is decreasing. Okay, so this kind of graph, when s and t both has power 1 but v is not constant. Okay, so it is not y equals to mx plus c format. Here it is also dependent on v, v is increasing, and this is also s and t के power 1 है but not linear because v is decreasing, ठीक है। We don't know what is the rate of increase or decrease of v, but v is not constant like y equals to mx plus c kind of formula. Okay, so this is parabola. Next one is, I will start with ellipse. Okay, पैराबोला क्या है? x और y का, एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है। अभी कैसा होगा कि दोनों का ही पावर 2 है, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ऐसे है,
ठीक है, ये जेनेरिक फॉर्मेट है इलिप्स का, और वो दिखने में कुछ ऐसा है। दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एंड ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, जो बड़ा वाला है, ये मोटा वाला जो है ये मेजर एक्सिस, ये छोटा वाला जो है ये माइनर एक्सिस। ए इज द मेजर एक्सिस, बी इज द माइनर एक्सिस, और इलिप्स का भी दो फोकस होता है, दो फोकस होता है, एंड उसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, where c is the distance between two focus. ओके, ये डिटेल में कवर किया जाएगा तुम्हारे मैथ सब्जेक्ट में। अभी के लिए जस्ट इतना सा, क्योंकि एक ही जगह पे इलिप्स आएगा, वो केपलर का सेकेंड लॉ ग्रेविटेशन में, के all the planets are actually revolving around the elliptical path, okay, elliptical path around sun, and sun is in the one of the focus, ठीक है, एक ही जगह पे इसका यूज है और बाकी कहीं पे यूज नहीं है, तो इसलिए मैं बस इतना सा रख के छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि I don't want to dump extra information at this moment on your head. तुम्हारा मैथ्स क्लास में मैथ्स टीचर स्लोली एक के बाद एक करते जाएगा और इसके ऊपर जितने सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेगा। फॉर द टाइम बिंग इलिप्स क्या है इसको जान लो। इलिप्स का फॉर्मूला यह है, ठीक है, ओके। नाउ सर्कल, ठीक है, इफ दिस इज इलिप्स, अभी मान लो कि ए एंड बी सेम हो गया, ये जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये दोनों, और सेमी मेजर एक्सिस रेदर, ए इज दिस मच, बी इज दिस मच, सो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, ए एंड बी सेम हो गया, तो ये कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, this is a square equals to 1, so x square plus y square equals to a square, ठीक है। और a एंड b के जगह इसको r कर लेते हैं, it will be easier, r square, ठीक है, a भी नहीं b भी नहीं, both are r, तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, ए एंड बी सेम हो जाएगा, वो दोनों का वैल्यू आर है, तो ऐसे सर्कल सर्कल बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो अभी चलते हैं सर्कल के ओर। तो यहां पे भी तुम देखो कि कहीं पे भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप कांस्टेंट ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन में ही है। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग यूनिटरी मेथड वगैरह और कई सारे इजी जियोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट आई विल कवर सब्सिक्वेंटली, बट और कहीं पे वी कैनॉट अप्लाई यूनिटरी मेथड और सिंपल जियोमेट्रिकल फॉर्मूला, जहां पे ग्राफ इज फॉलोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का जेनेरिक फॉर्मूला है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर,
ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल है? ये फर्स्ट थिंग, x square and y square, x square and y square, this will be the highest value of the power of x and y. ये दोनों का पावर 2 ही होगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा. If this one is 5, this one also need to be 5. नहीं तो ये फॉर्मेट में नहीं आएगा. ठीक है, एंड दोनों का ही साइन सेम रहेगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा. ओके, तो कोई भी फॉर्मूला है, फर्स्ट चेक कर लो x एंड y का पावर 2 है कि नहीं, मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, दोनों का वैल्यू और साइन भी सेम है कि नहीं. तो इफ दैट इज द केस, देन कैन बी से दैट इट इज ए फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल. एंड इसका जेनेरिक फॉर्मूला का डायग्राम कैसा रहेगा? So A and B will be the coordinate of the center. ठीक है, and R is the distance of a radius or length of the radius. ठीक है, तो सर्कुलर कहां कहां पे होता है? सर्कुलर मोशन जैसे बोला था कि when force and V is always perpendicular to each other. ठीक है, force and velocity always perpendicular to each other, then it is a circular motion. ठीक है, तुम एक पत्थर को रस्सी में बांध के ऐसे करके घुमाओ, so at any point force will be towards this direction and velocity in this direction. ये यहां पे आ गया, velocity will be in this direction tangential and force is in this direction. यहां पे आ गया, velocity in this direction, force is in this direction. So force and velocity always changing its direction in such a way that F and V are perpendicular to each other. F and V always like this. ठीक है, they are changing the position and the direction. जहां पे ये है वहां पे जाके F and V ऐसे हो गया, पॉइंट यहां पे मूव कर गया, F and V ऐसे हो गया. राइट, इसके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफरेंस क्या है कि व्हेन यू थ्रो समथिंग इन दिस डायरेक्शन, द इनिशियल वेलोसिटी गिवन इन दिस डायरेक्शन एंड इन द स्टार्टिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, mg समथिंग. ठीक है, when the particle moves here, then force doesn't change its direction, mg is still in direction and it gains some velocity downward. इसका original जो v था, that v is still there, it gains some velocity because of downward motion and उसका net एक velocity इस तरफ आ जाएगा. So that will be the net. रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट आएगा इसके बाद, तो अभी रिजल्टेंट ये टर्म मैं यूज नहीं कर रहा हूं. इसका एक वेलोसिटी v जो हॉराइजेंटल है, v हॉराइजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इट गेन सम वर्टिकल वेलोसिटी in the direction of force,
VV एंड उसके कारण VH एंड VV इसका एक रिजल्टेंट और नेट वेलोसिटी इस तरफ होता है। तो अभी देखो V नेट एंड mg फोर्स, so वेलोसिटी एंड फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मूव करते जाएगा the angle between velocity and force will change. Initially it was 90 degree, but finally it is changing. Then it will follow a parabolic path. Okay, but when f and velocity is ever changing in such a way that f and v always perpendicular to each other, then it is a circular motion. ठीक है, ख्याल रखना ये सर्कुलर मोशन में आएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तब फिर से ये सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ये फिर से आएगा क्लास 12 में जाके, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट को याद रखो। सर्कल हो गया, सो जियोमेट्रिकल फिगर ओवर। Now we'll go to trigonometrical figure. How the graphs look like if it is a trigonometrical figure. मानो के x displacement is sin omega t. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टी। ये अपना ओएफ थ्योरी का फॉर्मूला है। ए इज कांस्टेंट, डब्ल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन टी। तो ग्राफ कैसा होगा, वैसे इसको सिंपल ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, ये इसका फॉर्मेट। तो x इज एंगल हियर, राइट। सो x के वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x से वैल्यू कैन बी 0, कैन बी पाई बाई 2, कैन बी पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, देन चलता रहेगा, राइट। नाउ व्हेन x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू साइन 0 इज 0। व्हेन x का वैल्यू इज पाई बाई 2, y विल बी 1, ठीक है। वंस अगेन व्हेन इट इज pi, it will become 0. So graph will look like this. 3 pi by 2, it will be 1 once again. ठीक है। Then this one is 5 pi by 2. This one is 3 pi. Seven pi by 2. It will continue like this. Okay. So this is called sinusoidal curve. So ये साइन कर्व है। अभी आसानी से तुम्हें y इक्वल्स टू cos x भी निकल सकते हो। इट विल बी जस्ट द सिमिलर फॉर्मेट बट स्लाइटली रिवर्स। है ना। तो cos 0 का वैल्यू 1 है, दिस इज 1,
This is -1. So cos will start with 1, pi by 2 0, pi -1, 3 pi by 2, 2 pi, 5 by 2. तो ये जो OF पैटर्न है, OF पैटर्न इज रिवर्स्ड. ये जहां पे 1 रीच कर रहा है, दैट मीन sin x when it is reaching 1, it is actually hitting value 0. यहां पे जिसका मैक्स वैल्यू है cos का, यहां पे 0 वैल्यू है, और cos का जहां पे मैक्स वैल्यू है यहां पे इसका 0 है. तो ये हो गया y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ. अभी यहां पे कुछ कांस्टेंट है, तो देखो क्या रहेगा. यहां पे 1 के जगह ये a एंड -a बन जाएगा. दिस इज a, दिस इज -a. तो sin 0 में y इक्वल्स टू 0, sin पाई बाई 2 1 इंटू a, y का वैल्यू a बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज tan. Tan is interesting. Y equals to tan x. ठीक है. 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 pi, 5 pi by 2, 3 pi, 7 pi by 2 goes on. When x is 0, y is 0. When x is pi by 2, y is infinity. So graph will be like this. It will go towards infinity. अभी मजे का बात यह है कि द मोमेंट x का वैल्यू स्लाइटली एवा पाई बाई 2, तो ये ऑल साइन tan cos मैंने बोला था, ऑल साइन tan cos. सो यहां पे tan का वैल्यू 0 है. दिस इज 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, then 2 pi, and then next one. So when tan is reaching towards pi by 2, it will be infinity. But just slightly after pi by 2, tan का वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब उसका वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी है. तो यहां पे डिसकंटिन्यूटी, देन इट विल स्टार्ट हियर. दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी. ओके. एंड देन when it reaches pi, it becomes 0. समझ में आया? 0 to pi by 2, it is positive and value is moving from 0 to infinity for tan. When x is 0 to pi by 2, tan's value is moving from 0 to infinity. But pi by 2 के just immediate after that, वो धड़क से ये नेगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी से चालू हो जाएगा. तो ये ग्राफ यहां पे डिसकंटिन्यू होके ये इंफिनिटी है, यहां से फिर से चालू होगा. देन इट विल स्टार्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, सॉरी 0. देन पाई के इमीडिएट आफ्टर दैट इट विल फॉल इनटू थर्ड क्वाड्रेंट वेयर tan इज पॉजिटिव. सो इट विल वंस अगेन start moving in positive direction till 3 pi by 2 when it becomes पॉजिटिव इंफिनिटी. ठीक है. फिर 3 पाई बाई 2 के इमीडिएट बाद वो फिर धड़क से नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगा. ऐसे ग्राफ चलता रहेगा. ठीक है. 5 बाई 2 रीच करेगा, 5 बाई 2 से 3 pi positive, then
go towards negative. तो ये है tan का ग्राफ. ओके फिर आई विल डिस्कस अबाउट के एस एंड टी के कर्व में वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट व्हाट इज द v एट एवरी पॉइंट. ठीक है. ग्राफ कुछ ऐसा है. v पता चलेगा कि ये जो थीटा है विच इज स्लोप इज tan थीटा m. ठीक है. वी कैलकुलेट tan थीटा और वी टेक टू consecutive values और द कोऑर्डिनेट ऑफ टू consecutive पॉइंट. ठीक है. उधर से स्लोप पता चल जाएगा. बट v बाई टी कर्व कैसा होगा. v बाई टी कर्व. ठीक है. तो v बाई टी कर्व जो है v बाई टी कर्व में कर्व कुछ पहले स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं. v इज कांस्टेंट. ठीक है. यहां पे v इज कांस्टेंट. सो यहां से s का वैल्यू कैसे पता चलेगा. s का वैल्यू पता चलेगा v एंड t का. मानो t1 है यहां पे t इक्वल्स टू t1 एंड t2. ये दोनों के बीच में जो एरिया है that value will give you the value of s. ठीक है. तो very important concept. If a is a physical quantity which is multiplication of b and c. ठीक है. b कैसे पता चलेगा. b is the slope of a c graph. Very important concept. Concept is a equals to b and c. b का वैल्यू कैसे पता चलेगा. when a and c ग्राफ प्लॉट करोगे उसका स्लोप में स्लोप से तुम्हें पता चलेगा कि what is the value of b. But when a equals to b into c, then a का वैल्यू कैसे पता चलेगा. a is the area of a and c graph between two points. ठीक है. जैसे v and t ग्राफ. v and t is exactly fitting into s equals to vt. vt ग्राफ यहां पे v and c जैसे बोला है. सॉरी, a is the area of bc ग्राफ, not ac ग्राफ. area of bc ग्राफ. ठीक है. तो एसेंशियली इफ दिस इज a and this is c, if this is a and this is c and this is your graph or any graph, then b के वैल्यू यहां पे will be the slope of this curve. यहां पे b के वैल्यू यहां पे slope of this curve, right? But if this is a graph between b and c,
ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ. ओके, देन value of a between these 2 points will be the area of this. The value of this area will be the value of a when the relationship is a equals to b into c. ठीक है, तो ये एरिया विच इज एक्चुअली एरिया अंडर कर्व, फाइनली एरिया कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर सिंपल फॉर्म के लिए ठीक है, हो जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये. अगर कुछ ऐसा इक्वेशन है कि पैराबोलिक इक्वेशन बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है, और सर्कुलर इक्वेशन, देन इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा. दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. बट दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझना पड़ेगा. ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो डिफरेंशियल कब होता है, इंटीग्रेशन कब होता है, तब पता नहीं चलेगा. और एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन the physical quantity B is calculated by division of another two quantity B equals to A by C. जब डिविजन होता है तब A वर्सेस C ग्राफ में जो स्लोप है वहां से B का वैल्यू पता चलेगा. बट व्हेन A इक्वल्स टू B इंटू C, तो मल्टीप्लीकेशन होता है तब एरिया से करना पड़ेगा. ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट फॉर्मूला इज b इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड if there is some physical quantity which is actually a मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी एंड सी, देन उसका एरिया निकलना पड़ेगा. ठीक है, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. सो दिस इज V वर्सेस T ग्राफ. Between T1 and T2, what is the total displacement? This is the constant value is V. It is moving at constant velocity. So this is V, and this area should be then V into T2 minus T1. So displacement equals to V into T2 minus T1, which is very logical. Even without this graph, you know that if the velocity is V and between 10 a.m. in the morning to 10:30, what is the displacement? So दो टाइम का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. अभी ग्राफ कुछ ऐसा है. अभी मानो ग्राफ कुछ ऐसा है. इट इज नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, v by t and initial velocity is u, right? And this is a linear equation. तो यहां से ये जो स्लोप है, ये स्लोप से क्या मिलेगा? m. देखो एक्सीलरेशन का रिलेशनशिप क्या है? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी divided by change in time. Change in velocity by change in time.
तो रिलेशनशिप क्या है, ए इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो रिलेशनशिप यहां पे डिवीजन है ना। तो डिवीजन जब है, जैसे बोला इफ डिवीजन देन इट इज स्लोप। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज द जेनेरिक इक्वेशन, राइट, सॉरी। तो v बाई टी ग्राफ में ये अगर पॉइंट t है, दिस इज पॉइंट t, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल्स टू v इंटू टी। तो v इंटू टी ग्राफ में एरिया से पता चलेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। समझ में आया? v बाई टी ग्राफ में v डिवाइडेड बाई t इज एक्सेलरेशन और चेंज इन v डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v बाई टी ग्राफ में जो स्लोप है एट एनी पॉइंट इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तो सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं भी है तो भी ये कॉन्सेप्ट चालू है कि slope at any point of any value or any point of time will give you the value of acceleration। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का जेनेरिक फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v बाई टी ग्राफ में एरिया से पता चलेगा कि what is the displacement between two point। एरिया तो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो फ्रॉम 0 टू t मान लो, 0 टू t मान लो, एंड इफ दिस इज एन से फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देन एरिया कितना है तुम देखो, इफ दिस इज u, ओके, and this is the slope, slope is nothing but the acceleration, m is a, okay, and if this one is t, if this one is t and if this is acceleration, then how much is this, tan theta or m or acceleration a is equals to, let's say this is delta v by t, है ना। so delta v equals to at, right? so if after time t velocity is v, then velocity at time t equals to, this one is u plus delta v which is at। ये इक्वेशन तो सबको मालूम है, velocity at time t when a particle moving at constant acceleration a is vt equals to u plus at। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से प्रूफ हो गया, नेक्स्ट कैलकुलस से प्रूफ करूंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ एस का वैल्यू कैसे आएगा, एस इक्वल्स टू इतना एरिया कितना है u प्लस टी, एंड दिस इज ए ट्राइंगल, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इज टी इंटू हाइट इक्वल्स टू at, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रूफ हो गया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से। तो कहां पे स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहां पे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, पता चला।
इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम थिंग जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में यहाँ पे तुम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो, वहां पे जाके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, दैट इज डिफरेंट, आई मीन विल हैव टू लर्न इट। यहाँ पे जहां पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलस में जाके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप का इक्विवेलेंट इन कैलकुलस इज डिफरेंशियल, एरिया का इक्विवेलेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इंटीग्रेशन। ओके, और क्या, तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल दिया जहां पे ए इज कांस्टेंट। मानो के ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ये सब नोट कर लिया शायद। ठीक है, बी टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू टी क्यू कैसे हो गया कि टी टाइम में v जो है दैट इज u प्लस दिस डेल्टा v इज tan थीटा अपन डेल्टा v बाई टी, so a equals to, sorry, delta v equals to at. Okay, so vt is u plus at. Similarly, area is ut plus, ut is the area of this, and then triangle area is half into t into at, half at square. So ये दोनों प्रूफ हो गया थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। If it is not following a straight line curve, okay, if v is changing, then क्या होगा, then concept will be still the same। concept क्या है कि slope can be calculated by between two consecutive points the change of y with respect to x, and स्लोप से क्या पता चलेगा, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज अ डिवीजन बिटवीन y साइड फिजिकल क्वांटिटी वर्सेस x साइड फिजिकल क्वांटिटी। तो ग्राफ अगर ऐसा है, vt ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, तो यहां पे v इक्वल्स टू u प्लस एटी, ए फॉर्मूला नहीं चलेगा क्योंकि a इज नॉट कांस्टेंट। तो एट एनी पॉइंट इफ यू ड्रॉ दिस slope, so slope means a tangent at that point। ठीक है, q slope is tangent at that point, I'm coming in a minute। so this slope will give you the value of acceleration here, this slope will give the value of acceleration here, this will give value of acceleration here। so here you see the acceleration is increasing। जैसे लास्ट ग्राफ में मैंने देखा पैराबोला के बाद कि when the graph is like this, it is the slope is increasing। यहाँ पे slope क्या है, acceleration, acceleration is increasing। and then displacement कैसे पता चलेगा, between two points, between two points डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पे डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। ये एरिया भी कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो एरिया ही है जो वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देगा। आइदर यू प्लॉट इट एग्जैक्टली प्रॉपरली in a graph and then find out what is the area, or you apply integration। okay, integration is easier। एक चैप्टर मैथ्स में है एरिया अंडर कर्व, वहां पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा जहां पे
कुछ भी ग्राफ दे दिया, पैराबोला ग्राफ या सर्कल और इलिप्स और समथिंग बिटवीन 2 पॉइंट, उसका एरिया क्या है, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे है फिजिक्स का। जैसे मैं बोला लास्ट क्लास में कि फिजिक्स एंड मैथ्स लाइक ए ट्विन ब्रदर्स और ट्विन सिस्टर। मैथ्स में तुम्हें बहुत कुछ एग्जाम्पल और थ्योरी दिया जाएगा, शायद तुम्हें वो एग्जाम्पल से फिजिक्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं पता चलेगा। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज रियल लाइफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल लाइफ फिनोमेना विथ हेल्प ऑफ मैथ्स। तो दोनों को एक साथ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरिया से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। दिस इज T1 एंड T2। T1 एंड T2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? दैट इज एरिया ऑफ VT ग्राफ बिटवीन T1 एंड T2। जो नॉर्मल केस में A इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई T, ऐसे मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन फॉलो करते हैं, वहां पे एक एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इफ इट इज नॉट फॉलोइंग अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में जो A इक्वल्स टू V इंटू T है वो एरिया से निकलना पड़ेगा, और लीनियर इक्वेशन में जो V इक्वल्स टू S बाई T और डेल्टा S बाई डेल्टा T व्हाटएवर, तो यहां पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और स्लोप को निकालना पड़ेगा। ओके, और कुछ है? शायद यही तक है यहां पे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस में जाएंगे तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट और एरिया का जो कॉन्सेप्ट कवर किया, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि यही से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे का कैलकुलस। ओके, तो आज का समाचार यहीं पे खत्म। गुड नाइट, बाय।